غلطی ہے، کوتاہی ہے یا زیادتی ہے، اس پہ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ سی سی ڈی کے اپنے پولیس اسٹیشنز ہیں، سی سی ڈی صوبائی سطح پہ کام کر رہی ہے، سی سی ڈی کے جو ڈی ایس پی صاحبان ہیں ان کے پاس جا کے شکایت کر سکتے، پکڑنا، ان کے خلاف کارروائی کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا مشکل ٹاسک ہے۔ پولیس کے پاس نفری اس حد تک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زبیر امان۔ سی سی ڈی کے متعلق جب سے یہ محکمہ بنا ہے، کچھ لوگ ہیں وہ مختلف سوالات اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ خوش ہیں، کچھ بیچ میں مختلف قسم کی جو شرارتیں ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ سی سی ڈی کس طریقے سے کام کرتی ہے؟ کیا واقعی یہ بے گناہوں کو بھی اڑائے جا رہے ہیں، پھڑکائے جا رہے ہیں؟ پھر ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ اب جو سی سی ڈی ہے ان کی جانب سے یہ جو کچا کا علاقہ ہے، وہاں پر جو ڈکیت گینگز ہیں، وہاں پر جو کرمنلز ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائیاں ان کی جانب سے کی جانے لگی ہیں یا پھر شروع کر دی گئی ہیں۔ کس طریقے سے یہ لوگ کچے میں آپریشن کر رہے ہیں، ان کی کیا حکمت عملی ہوگی، اور کچا کے علاقہ میں کون کون سے گینگز ہیں؟ اس وقت میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے سی آئی اے میں بے پناہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے کرمنلز کو، ڈکیتوں کو، چوروں کو، اچکوں کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے۔ پھر یہ اس وقت محکمہ کے اندر اور باہر ماشاء اللہ ان کی پیاری نظر ہوتی ہے۔ ظہیر الدین بابر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ ماشاءاللہ جنگ ہیں آپ ابھی تک؟ اللہ کا احسان۔ سر، سی سی ڈی کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ بے گناہوں کو بھی بیچ میں پھڑکائے جا رہے ہیں۔ آپ چونکہ سی آئی اے کا حصہ رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ اتنے سال آپ نے محکمے کو دیے، کیا واقعی جو محکمہ پولیس ہے وہ بے گناہوں کے خلاف بھی کارروائیاں کرتا ہے یا وہ اس طرح کے کام کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا چلا آیا ہوں اور آج بھی وہی بات کروں گا کہ پبلک کے لیے سب سے آسان ہدف الزام ٹھہرانے کے لیے ہمیشہ سے پولیس رہا ہے اور وہی روش آج بھی جاری ہے۔ پولیس چونکہ ڈائریکٹلی پبلک کو ڈیل کرتے ہیں، عوام الناس میں معاملات کو پولیس دیکھتی ہے، تو پھر وہاں پہ الزامات کو لگیں۔ آپ نے سی سی ڈی کا حوالہ دیا اور اس میں آپ نے پولیس کا بھی ذکر کیا۔ سی سی ڈی اور پولیس ایک ہی ادارہ ہے۔ سی سی ڈی سی آئی اے کو جدید خطوط پہ استوار کرتے ہوئے او سی یو بنا اور او سی یو کے بعد آرگنائز کرائم یونٹ، اب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک قانون کے تحت بنایا گیا ادارہ ہے اور اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پولیس کے دیگر شعبے جو ہیں ان کی طرح سے بڑی سخت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حد تک پولیس افسر اکاؤنٹیبل ہے، شاید ہی کوئی کسی دیگر ادارے کا کوئی بندہ اکاؤنٹیبل ہوگا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، باقی ہمارے جتنے بھی سول ادارے ہیں ان پہ غور کر لیجئے۔ آپ کسی کے خلاف شکایت کریں اور وہ آپ کی شکایت کہاں تک پہنچے، مجھے آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کسی دیگر ادارے کی کسی بھی جو غلطی ہے، کوتاہی ہے یا زیادتی ہے، اس پہ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ تو واحد ادارہ پولیس ہے جو اکاؤنٹیبل ہے اور بڑی سخت سزائیں بھی ملتی۔ سی سی ڈی والے سر کتنے ٹیکنیکل لوگ ہیں؟ ٹیکنیکل سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سی سی ڈی کوئی نئی قائم ہونے والی فورس نہیں ہے، یہ وہی جیالے ہیں جو پہلے سی آئی اے میں تھے اور سی آئی اے کے بعد آرگنائز کرائم یونٹ میں تھے اور اب سی سی ڈی میں کام کر رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ او سی یو بننے تک وہ اختیارات اور وہ وسائل موجود نہیں تھے جو کہ در حقیقت ہونے چاہیے۔ سی آئی اے کو، او سی یو کو بڑا ہینڈی کیپ تھا دوسرے اضلاع میں کارروائی کرنے کے حوالے سے۔ جب چور، ڈاکو، کرمنلز راہ فرار اختیار کرنے کے بعد دور دراز علاقوں میں چھپ جاتے تھے تو پھر سی آئی اے کے لیے، او سی یو کے لیے ذرا مشکل تھا۔ ہماری یہ خواہش تھی، ہماری یہ کوشش تھی اور ہم نے اس کے لیے بے شمار جو فورمز ہیں ان پہ آواز بھی بلند کی کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے، او سی یو کو اتنا فعال اور اتنا مضبوط بنایا جائے کہ یہ پنجاب کی سطح پہ کام کرے۔ آخر کار وہ دن آ گیا۔ او سی یو کو ترمیم کر کے قوانین میں اور جو ہمارا پولیس آرڈر 2002 ہے
को CCD बना दिया गया। CCD के अपने पुलिस स्टेशन हैं, CCD सूबाई सतह पे काम कर रही है और उनका दायरा इख्तियार जो है वो वसी है। तो टेक्निकलिटी की जहाँ तक बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस सर्विस में जितनी ट्रेनिंग्स हैं वो ट्रेनिंग्स हैं ही क्रिमिनल्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। अरे सर, कच्चे की तरफ भी आते हैं, उससे पहले एक और सवाल है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिन्हें शिकायत होती है, अगर किसी को CCD महकमा से या फिर किसी ऑफिसर से किसी किस्म की भी शिकायत है तो वो किसके पास जा सकता है कि हमें ये मसला है, हमारी ये इल्तिजा है, हमारी ये दरख्वास्त है? स्टेप बाय स्टेप सारे फोरम्स मौजूद हैं। आप CCD के जो DSP साहबान हैं उनके पास जाके शिकायत कर सकते हैं, आप उनके SP के पास शिकायत कर सकते हैं, आप उनके RO जो हैं उनके पास जा सकते हैं शिकायत करने के लिए, और आप उनके एडिशनल IG तक पहुंच सकते हैं। DIGs भी इसमें पोस्टेड हैं। तो मैं समझता हूं कि अकाउंटेबिलिटी के लिए आप जाके कोई जंजीरे अदल खटखटाएं तो उसका आपको डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट मिलता है। सर, कच्चे की तरफ आते हैं, हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ देखी हैं डकैतों की, हत्या कि हमारे बहुत सारे जो जवान हैं, पुलिस एहलकार हैं, वो शहीद करते हैं, चौकियों पे हमले करते हैं, कईयों को वो अगवा करके ले जाते हैं। कच्चा के इलाका में कितने गैंग्स हैं जो कि मुतहर्रिक हैं? देखें, ये जो कच्चा की कहानी है ना जी, इस पे मेरे बेतहाशा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं अभी इस पे कोई भी गुफ्तगू करूं तो वो क़ब्ल अज़ वक्त भी होगी, लेकिन मुख्तसरन अर्ज़ किए देता हूं कि ये एक ऐसा इलाका है कि जिसकी हदूद जो है, जो जोग्राफियाई हदूद हैं, वो हमारे दूसरे प्रोविंस के साथ भी जाके मिलती है। और हर ऐसा इलाका जहाँ पे प्रोफेशनल जो आपकी प्रोविंशियल हदूद हैं वो साथ मिलती हों, वहाँ पे पुलिसिंग ज़रा मुश्किल हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ पे पंजाब में, बल्कि हमारे लाहौर में ऐसे इलाके मौजूद हैं जिसे हम दरिया कहते हैं। दरिया के किनारों पे बसने वाले क्रिमिनल्स, उनको पकड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना खासा मुश्किल होता है। अब हमारे दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट है, एक लाहौर डिस्ट्रिक्ट है। इनकी हदूद के दरमियान दरिया रावी के किनारे जो बेला है उसमें बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स छुपते हैं और पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करने में बेतहाशा दुश्वारियों का सामना होता है। दरिया चनाब है और इस तरह से दीगर जेलम है। तो ये जितने भी दरिया हैं, इनके किनारों पे भी पुलिस को काम करने में खासी दुश्वारी होती है। तो सर, इस दुश्वारी की मेन वजह क्या होती है? देखिए, अब मैं कहा करता हूँ कि दरिया के दूसरे किनारे पे बैठा हुआ बंदा जो है ना, वो जितना मर्जी बेशर्म हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरा मुश्किल हो जाती है। आप यहाँ से उस किनारे पे पहुंचे तो वो वापस इस किनारे पे आ जाता है। तो उनके लिए फरार के, छुपने के बेतहाशा वहां पे मौके मौजूद। कच्चा के हवाले से जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं ये समझता हूँ कि ताज़ा तरीन जो वाकया पेश आया जिसमें हमारे जवान शहीद हुए और उन्होंने हमारे जवानों पे अंधाधुंध लॉन्चर्स भी फेंके और लॉन्ग रेंज जो हथियार थे वो भी इस्तेमाल किए। तो मैंने अर्ज किया कि मैं इस पे अभी लब कुशाई नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है। मेरी नजर में किसी भी SHO के इलाका में होने वाली वारदात हो सकती है, कोई भी क्राइम हो सकता है। मेरी नजर में रिपीटेड क्राइम जो है वो बड़ा मैं समझता हूं कि भयानक है। रिपीटेड क्राइम किसी भी SHO की बाज फोर्स के लिए एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। मिसाल दे देता हूं, अगर एक इलाका से मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है या गाड़ी चोरी हो जाती है या वहां पे स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, स्नैचिंग हो रही है, तो वो एक दफा हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा हो सकती है। उसके बाद अगर होती है, रिपीटेडली होती है, तो फिर वो SHO नाअहल है। तो कच्चे के हवाला से मैं अपने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब को गुजारिश करूंगा, मेरे फेवरेट है, मैं इस पे इसलिए बात नहीं करना चाह रहा कि वो हर चीज को एड्रेस करें, और डेफिनेटली इस वाकये को भी वो बड़ा सीरियसली लेंगे। CCD भी इस पे काम करना शुरू कर चुकी है और दीगर
जो हमारे पुलिस के शोबे हैं वो भी इस पे बड़ी बेहतरीन कार्रवाई करने क्या जा रहे हैं। सीसीडी के पास इतने वसाइल हैं कि वो CCD कच्चा के पास- जैसे इलाका में वो CCD ये के पास कार्रवाई बड़े करे? वसाइल हैं, सिर्फ इसमें हमें सूबाई सतह पे जो हमारी जोग्राफियाई हदूद है उसमें हमें दूसरे सूबों से भी मदद लेना पड़ेगी और हमें ये कोशिश करनी होगी कि दूसरे सूबे भी इसमें इन्वॉल्व हों और उनको राह फरार ना मिल सके। थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, पुलिस के पास नफरी उस हद तक नहीं है कि पुलिस जो है वो हर कॉर्नर को, हर चौक को कवर कर ले, लेकिन ये भी ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि कच्चा के इलाका में होने वाली जो कार्रवाई है, जो ये भयानक वाकया पेश आया है, इसमें SHO इलाका के DSP, SP, इवन DPO साहब जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि इतने वनरेबल हमारे जवान क्यों थे, क्या इशू था कि वहां पे हमारे जवान जो थे उनको इतनी आसानी से निशाना बना लिया गया। और मैं समझ रहा हूं कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब और एडिशनल IG CCD इस पे आइंदा बड़ा सख्त एक्शन लेने वाले हैं और आप जल्द खुशखबरी सुनेंगे, इसलिए मैं अभी इस पे कोई भी बात खुल के नहीं करना चाह रहा। अच्छा सर, महकमा में मुझे रहते उम्मीद है कि हुए बेहतर कार्रवाई आपने बड़ी दबंग कार्रवाइयाँ की हैं। अगर जहीरुद्दीन बाबर को मौका मिलता है तो चाहे आप कच्चे में ऑपरेशन करें, ऐसे लोग सदा के मुस्तहिक हैं जो हमारे जवानों का खून बहाते हैं। आम पुलिस में ऐसे सरफरोश, जी मैं आपकी बात समझ गया हूँ, पुलिस में ऐसे सरफरोश मौजूद हैं जिनकी ख्वाहिशात में कतई तौर पे फॉर्च्यूनर्स और लैंड क्रूजर्स नहीं है, वो अपनी जान हथेली पे रख के हमेशा से मिशन जो हैं वो कंप्लीट करते रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 10-12 ऐसे ऑफिसर्स को अगर ये टास्क दे दिया जाए और उन्हें उनकी रिक्वायर्ड नफरी दे दी जाए तो मेरी नजर में कोई भी क्रिमिनल इतना दिलेर, इतना बहादुर नहीं होता, ये सब बुज़दिल होते हैं और इनकी की गई तमाम कार्रवाइयां बुज़दिलाना कार्रवाई। आपको कितनी नफरी चाहिए होगी? देखिए ये ग्राउंड पे जाके मैं उस एरिया की जोग्राफियाई हदूद से इस हद तक वाकिफ नहीं हूँ कि मैंने वहां सर्व नहीं किया। अगर मैंने वहां सर्व किया होता तो मैं वहां पे मैप बना सकता था कि अगर जियालों को उनकी मर्जी के मुताबिक मुट्ठी भर जवान भी दे दिए जाए तो वो फिर एक इस्लाम के लश्कर की तरह लड़ मरेंगे और कामयाबी उनका मुकद्दर हो। आप नाज़रीन ये देखें कि माशाल्लाह ज़हीर साहब के अभी तक वही वाले जज्बात हैं, वही वाला इनके अंदर जोश है जो कि महकमा में जब ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और ये अभी भी तैयार बैठे हैं। आप इन्हें मौका दें कि जाएं आप कच्चे में और ऐसे लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं जो कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि हमारे जवानों को वो शहीद कर लेते हैं, कई सिविलियन को वो अगवा कर लेते हैं, फिर तवान मांगते हैं, फिर भत्ता मांगते हैं। तो इस महकमे में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अगर इनके हवाले आप करें ना बंदूक और इन्हें दें अख्तियारात, फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से ये कच्चे में पक्का हाथ डालते हुए वहाँ से ऐसे लोगों का सफाया करते हैं। तो वो लोग जो CCD महकमा के ऊपर उंगलियाँ उठाते हैं या फिर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, मैं इनसे इसी चीज़ का जवाब लेने के लिए आया था। सर, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की जाती है CCD की जानिब से? CCD में बड़े मजे हुए हमारे खिलाड़ी मौजूद हैं। CCD में जिसे आप देखें वही जियाला है और मैं समझता हूं कि अवाम नास को कोई 4-6 महीने के लिए इल्जामात आयद करने की बजाय देखना चाहिए। मेरा दावा है कि अगर CCD इसी तर्ज पे काम करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी बहू बेटियां जेवरात से मलबूस बाजारों तक भी जाएंगी और बखरियत घर वापस भी पहुंचेंगी। इंशाल्लाह वो दिन आने वाला है। CCD के 1-2 कारनामे हैं। चूंग में आपने देखा कि कैसे इन्होंने उन जालिमों को जिन्होंने एक खातून के साथ ज्यादती की थी उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जो उनका हक बनता था। फिर कसूर में तो जालिम दरिंदा जो एक बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करता है उसको इन्होंने उसके अंजाम तक पहुंचाया, ये उसका हक बनता था, वो इसी काबिल था। फिर इसके अलावा मुल्तान में एक और जालिम ने गंदी हरकत की एक बच्ची के साथ, उसके साथ जो कुछ CCD ने किया, हम उन अफसरान को सलूट पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। फिर हाफिजाबाद में
آپ نے دیکھا کہ ایک ہماری بہن تھی جس کی عزت ظالموں نے لوٹی، اور پھر ہمارے انہی جوانوں نے، ہمارے انہی بھائیوں نے، ہمارے انہی محکمے کے لوگوں نے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ تو سی سی ڈی کی جو کامیابی ہے نا جی، اس میں آپ یہ ایڈ کر لیجئے کہ اتنا پرومپٹ ایکشن، اتنا ریپڈ رسپانس کہ چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں یہ ظالم سفاک خنزیر اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں۔ بالکل ان کو انجام تک پہنچنا چاہیے۔ ہماری جہاں تک سپورٹ ہے وہ اپنے ان جوانوں کے ساتھ ہے، ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ ہم اس طرح، یہ ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے جس کے تھرو ہم ان کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے پیچھے اور ہمارے ساتھ ایسے پولیس کے جوان ہیں جو بے شک ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک یہ قائم و دائم ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔